ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हमारा खास कार्यक्रम जनता का फैसला भी लगातार जारी है और लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं मतगणना से जुड़ी। आपको बता दें एक बार फिर से कि चारों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर बीजेपी को मिल रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे आगे चल रही है बीजेपी। सबसे तेज़ी से यहाँ पर कांग्रेस का सफाया हुआ है। आइए चलिए आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। रमन सिंह क्या कह रहे हैं? मित्रों, आज छत्तीसगढ़ की आज राजनीति की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आपको बता देंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर जीत चुके हैं और दोबारा से वो यहाँ पर सत्ता में आने की चाह है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर यहाँ पर चल रही है, लगातार आगे पीछे हो रहा है सब कुछ, मगर नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तो आपको बता देंगे कुछ ही सेकंडों बाद यहाँ पर सोनिया गांधी मीडिया के सामने आ रही हैं। क्या कहती हैं सोनिया गांधी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चारों जगह एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को हार मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं चारों खाने चित्त होने जा रही है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कहने वाली हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर झटका लगने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रुझान आ रहे हैं सामने, चारों राज्यों के रुझानों की तरफ नज़र डालें तो कहीं पे भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया गया है। मतलब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ना तो राहुल का जादू चला है, ना सोनिया का जादू चला है, ना पीएम की झप्पी चली है। यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा कांग्रेस का, इस पर विचार विमर्श करेंगी, क्या मीडिया से कहेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ हैं। दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मीडिया से बातचीत करने यहाँ पर पहुँचे हैं। It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers, because not only at the state level, but also from other states, they participate in the campaign and they worked very hard everywhere. Price rise also was an issue that was affecting people. I mean, in states like Rajasthan, we all thought that our Chief Minister had run some very, very good programs. So there again, it's a question mark. But even in Delhi, even though we have been in government for 3 terms, I do believe that a great deal of work was done. But obviously, the results tell us something else. We will introspect seriously and we will take all necessary actions to rectify our mistakes or our way of functioning. Well, general elections are quite different. People in state elections, they focus on the personality at the state level, at the leader who's likely to lead them and govern at the state level. At the for a national election, then people look at the person who's likely to guide them and govern them.
at the national level. The issues will be slightly different because at the state level issues are localized. At the national level, they are national. When the Prime Ministerial candidate for the Congress Party is your son Rahul Gandhi, and do you think the Congress Party should make that announcement, or do you feel now that you have learned some lessons and you all will retract your statement on that? Well, we have not, which statements? We have not made any statements. It's understood that he will be leaving the party. Well, the party has to decide. The party will decide. At the opportune time, the party will But you decide. have Narendra Modi against you. You have Narendra Modi against you. How are you going to work with him for the Congress Party? You have Narendra Modi as a Prime Ministerial candidate and there seems to be a I think people need not worry. At the opportune time, the Prime Ministerial candidate, the name of him will be announced. देखिए एक सेकंड देखिए एक सेकंड मैं बोल सकता हूं एक सेकंड देखिए इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। The Congress Party has the ability to transform itself. The Congress Party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress Party is going to do that. The Congress Party also, and myself and the Congress President would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country, and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said, and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. Myself, Sheila ji has worked hard in Delhi, and I believed that Sheila ji gave good governance. But I think what we need to do as a party is move ahead of just talking about good governance, and we need to move to a paradigm, to a place where we are actually giving serious space to the common man in our processes, in our systems, in our structures. Political parties today are not giving adequate voice to the man on the street, and it is our job as institutions of the voice of people to do that. I fundamentally believe that, and I am going to put all my efforts in transforming the organization of the Congress Party together with the leaders of the Congress Party, and give you an organization that you can be proud of, and organization has voice embedded inside it. I can't hear you. I think both the major parties are thinking about, particularly in Delhi, are thinking about politics in a traditional way. And I think we need to start thinking about politics of empowerment of people. I've been saying this inside the Congress Party. I'm going to
now do it very aggressively in the Congress party, and I'm going to work with the leadership of the Congress party to make this central to our. No, Mr. Kejriwal. मैं जवाब देने दो. Rahul ji, whatever you said in Jaipur has not been translated into action. No, that's. I'm sorry, that's not that. You made a lot of tall promises. No. You have virtually gone back No, that is not true. in terms of distribution of tickets, in terms of your Anyway, I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. About the, you asked me just now a question about Mr. Modi. Mr. Modi is the leader of the BJP. The Congress party has a vision of this country. The Congress party has a perspective of this country, and the BJP has another perspective of this country. Our job is to push our perspective, to push what we believe in, and that is what we are going to do. Their job is to push their perspective and to push what they believe in. So my focus is on what I can help the people of this country with. That is my, no, let me finish please. That is my focus, that is the focus of the Congress party. How can we transform this country? How can we use the power of the youth in this country to give a better future to this country? What the BJP is doing, what other people are doing, that is their concern. What we are going to do is what we are focused on. Thank you very much. तो यहाँ पर आपको बता दें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने काफ़ी सारी बातें की। यहाँ पर सोनिया गांधी ने यहाँ पर साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से दुखी और उस एंटी इनकम्बेंसी का सर्वाधिक लाभ यदि किसी ने उठाया है तो आपने उठाया। मिस्टर वेंकट हाँ एक मिनट वेंकट जी आते हैं आपके पास। वेंकट जी में कम है विकास। अधिकतर लोगों ने यहां पसंद नहीं किया, अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद किया है। मिस्टर वेंकट सीधा जवाब दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। नहीं, डीएमके की तरफ से ऑफर आया है ना हमारी तरफ से कोई पहल हुई है। जवाब सीधा है। मिस्टर रविंदर करो सुजीत ठाकुर हो गया। तो हो गई बात, आपने सीधा पूछा था, सीधा बदला दिया। मिस्टर रविंदर नहीं, देखिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। मिस्टर सुजीत ठाकुर मित्रों, ये जानकारी और आपको देना चाहता हूं, इन 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद वहां विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का चुनाव करना है।
और इस चुनाव के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वर तय किए हैं, उनकी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और श्री राजीव प्रताप रूडी, और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी वो मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा, और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावर चंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। यह चारों राज्यों में हमने ऑब्जर्वर मनोनीत किए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। एक बार हाँ आपका सवाल प्लीज। सुजीत ठाकुर, मिस्टर सुजीत ठाकुर, हो गया ना आपका सुजीत जी? आपका हाँ प्लीज। हाँ एक सेकंड मौजूदा जी प्लीज। अरे दरवाजा बंद करो यार, कौन किसी चीज को नहीं बिल्कुल हवा बनाने का प्रश्न नहीं है। अभी तो चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जानकारी हम लोगों ने अभी नहीं वोट परसेंटेज अभी आपने कैसे निकाल लिया? जब तक कि सारे चुनाव परिणाम आएंगे ही नहीं तो लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? नहीं ऐसा नहीं। जब तक सारे चुनाव परिणाम नहीं आते हैं तब तक परसेंटेज की बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि दिल्ली विधानसभा के पूरे चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम यहां सरकार बनाने के संबंध में कोई बात स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। मैंने अब हो सकता है कि और बढ़ जाए। मिस्टर मजूमदार, जो कुछ भी पार्टी को फैसला करना होता है उचित समय पर फैसला करती है। कुछ राज्यों में जहां आवश्यक हमको महसूस होता है जितने महीने पहले करने का, उतने महीने पहले हम अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा करते हैं, और दिल्ली में भी उसी अनुसार किया है। यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। मिस्टर वाजपेयी, श्री शिवराज सिंह चौहान पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात, अबे एक मिनट जरा दिलीप तिवारी। नहीं कांग्रेस ने तो किसी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। मिस्टर अमित मैं यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि चार के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेगी। तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, और अभी नतीजे नहीं आए हैं मगर उन्हें पूरा भरोसा है कि चारों राज्यों में बीजेपी यहाँ पर सरकार बना रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह यहाँ पर पीसी कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने बोला कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे, चारों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका फ़ायदा तो हमें मिला ही है, साथ में हमें नरेंद्र मोदी का भी बहुत फ़ायदा मिला। वहीं अगर सोनिया गांधी की बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मीडिया के सामने आए और कहीं ना कहीं एक दुख था उनके चेहरे पर, जिस तरीके से यहाँ पर हार का सामना
करने कांग्रेस चाह रही थी। तो बात करें तो यहाँ पर सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम बड़े दुखी हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इन चुनाव परिणामों को सुनकर। तो आपको बता रहे हैं बीजेपी दफ्तर भोपाल की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं लाइव। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव को लड़ा, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय शिवराज सिंह जी को बधाई दें। आज इस अवसर पर माननीय शिवराज सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सुंदरलाल पटवा जी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय कैलाश जोशी जी उपस्थित हैं, माननीय सारंग जी उपस्थित हैं, माननीय माखन सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे इस चुनाव में सारा प्रबंध जिनके जिम्मे था ऐसे आदरणीय अनिल दवे जी उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा साहब उपस्थित हैं, हमारे संगठन महामंत्री माननीय श्री अरविंद मेनन जी उपस्थित हैं और हजारों हजार कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी ये ऐतिहासिक दिन है। यह इतिहास में हमेशा लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और आज का यह दिन इसलिए भी हमेशा इतिहास में जाना जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव हारी है। यह चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम सब भली बात ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विचार को आगे बढ़ाया। कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता जी, उन्होंने इस विचार को मध्य प्रदेश में पोषित किया और उनकी परंपरा को माननीय जोशी जी, पटवा जी और सारंग जी ने आगे बढ़ाया। उन सब का स्वप्न था कि मध्य प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रांत बने। पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर आज विकासशील राज्य की श्रेणी में खड़ा हुआ है। आने वाले कल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, पटवा जी और जोशी जी के आशीर्वाद से यह मध्य प्रदेश विकसित प्रांतों की अग्रपात में खड़ा होगा और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। इस विशाल जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद के कारण भारतीय जनता पार्टी यह इतिहास बनाने में सफल हुई है। लेकिन हम सब इस बात को भली बात जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित मालिका को खड़ा किया। कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की यह बड़ी श्रृंखला लाखों की तादाद में आज खड़ी हुई है। वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के इस कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश के 53,000 मतदान केंद्रों तक प्राणपण से इकट्ठा होकर 1 साल तक लगातार काम किया। और इसलिए अगर इस जीत का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वह श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है। उनके आधार पर यह इमारत आज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है। हम सबके लिए प्रसन्नता की भी बात है और गौरव की भी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। वे मुख्यमंत्री बने। 2008 में भी उन्होंने जीत दर्ज की और 2013 में भी उनके नेतृत्व में हम लोगों ने हैट्रिक लगाई है। हम सबको इस बात का गौरव है, इस बात का अभिमान है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से
इस राजनीतिक क्षेत्र में दिखाया था। तो आपको बता दें यहाँ पर ये पीसीएम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर खासी प्रसन्न मुद्रा में थे। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हैट्रिक मार चुकी है बीजेपी और परिणामों का पूरा इंतजार है, मगर एक तरीके से यहाँ पर जीत निश्चित हो गई है बीजेपी की। राजस्थान में भी बीजेपी जीत चुकी है और मध्य प्रदेश में एक तरीके से यहाँ पर हैट्रिक लगाई गई है। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान का कद अब बीजेपी में और बढ़ जाएगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, मगर देखना होगा अभी क्या पूरे नतीजे निकल कर आते हैं सामने। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वसुंधरा की वापसी हो गई है और गहलोत चले गए हैं वहाँ से, मतलब वहाँ पर भी कांग्रेस को एक करारी हार। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है। तो आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में, बड़ी मेहनत की थी शिवराज सिंह चौहान ने, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, सबका आशीर्वाद लेने गए हुए थे शिवराज सिंह चौहान और वो आशीर्वाद जनता ने उन्हें आखिर दिया। एक बार तीसरी बार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी में उनका कद कितना और बढ़ जाता है जीत के बाद। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे, चारों तरफ से एग्जिट पोल्स आए थे, तमाम सर्वेस किए गए थे और बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। मैं यह जीत समर्पित करता हूं क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और जनता का जो प्रेम मिला है, मैं उनके प्रति जिन्होंने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और तीसरी बार सरकार बनाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने विश्वास प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और तीसरी बार बेहतर सरकार बनाने के लिए ये चुनाव में विजयी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का ऐतिहासिक निर्णय, राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में जो 10 साल में उन्होंने देखा है, उसको आगे 5 साल और सरकार को अवसर देने का ये निर्णय है और इस निर्णय के लिए उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। ये कहा जाता रहा है कि सरकार एक बार 2 बार और उसके बाद सरकार के प्रति एक जनता के मन में आक्रोश रहता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मगर छत्तीसगढ़ ने और देश के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश ने साबित किया कि यदि बेहतर काम हो तो जनता का विश्वास 10 साल बाद भी मिलता है और प्रो इनकम्बेंसी व्यवस्था के साथ उस व्यवस्था के किए गए काम के समर्थन में, सहयोग में जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ है, ये बताता है कि जनता अब डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से और सोशल सेक्टर में जो काम हुए हैं उसके प्रति मुहर लगाती है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। और इस बार पूरे चुनाव अभियान में जनता ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है बीजेपी। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर प्रेस को संबोधित करते हुए साफ तौर पर बताते हुए कि जिस तरीके से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है बीजेपी को स्थिरता लाने के लिए, सरकार में स्थिरता लाने के लिए, उससे हम काफ़ी खुशी हैं। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुँच चुके हैं बीजेपी के ऑफिस में, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें नरेंद्र मोदी की, जहाँ नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुँच चुके हैं। आपको बता दें तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, संसदीय बोर्ड की बैठक है। जिस तरीके से चारों राज्यों में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, एक ऐतिहासिक दिन है आज बीजेपी के लिए, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी आशा थी, इन चुनाव परिणामों का इंतजार सबसे ज़्यादा था, तो वो था नरेंद्र मोदी को। आज देखना होगा कि इस नरेंद्र मोदी इस जीत पर
कितने फूले समा रहे हैं और क्या संदेश देते हैं वो कांग्रेस को और क्या संदेश देते हैं देश की जनता को। कहने के जीत मोदी की जीत कही जाए एक तरीके से। जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया, खुलकर चारों राज्यों में गए, लगातार रैलियां की, लगातार वहां की जनता को संबोधित किया, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कहीं ना कहीं जो मोदी है, मोदी के चेहरे का फायदा यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है और चारों राज्यों में इसलिए एक अच्छी जीत की ओर बीजेपी बढ़ी है। ये वो दिन है जिसका इंतजार पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस और नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा इस दिन का इंतजार था और आज वो दिन आ गया और चारों राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज करने की पहल की है और वहीं कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। तो आपको बता दें नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है क्योंकि चारों राज्यों में एक अच्छी जीत की ओर है बीजेपी और कहीं ना कहीं ये जीत नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि एक अहम भूमिका नरेंद्र मोदी ने इसके लिए चुनाव प्रचार में निभाई थी। मध्य प्रदेश में उन्होंने खुलकर चुनाव प्रचार किया, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी लगातार बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की और उसका फायदा बीजेपी को आज यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का अगला बयान क्या होता है, क्या संदेश देते हैं कांग्रेस पार्टी को, आम जनता को और देश की जनता को, इन चारों मुख्यमंत्रियों को। तो जनता का फैसला लगभग आ चुका है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है चारों राज्यों में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है जहां पर कांग्रेस की बिल्कुल सफाया हो गया। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक पूरे तरीके से सफाया हो गया है, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी सफाया हुआ है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर में बीजेपी ने फिर से यहाँ पर एक बार कांग्रेस को मात दे दी है। मतलब चारों खाने चित्त हो गई है कांग्रेस। तो चलिए, जनता का फैसला भी लगातार जारी है मगर चलते चलते एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारों राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जनादेश, बीजेपी जीत की ओर। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन, दिल्ली में बीजेपी पहली सबसे बड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश में शिवराज ने लगाई हैट्रिक तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा को मिला जनादेश, पूरे बीजेपी खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, आम आदमी पार्टी से मिल रही थी कड़ी टक्कर, कांग्रेस दिल्ली में करारी हार की ओर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने हराया दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं शीला दीक्षित। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर में बीजेपी को मिली जीत, पूरा हुआ रमन सिंह की हैट्रिक का सपना। तो जनता का फैसला में फिलहाल इतना ही, मगर एसएमबीसी इनसाइड पर ताजा खबरें और चुनाव से जुड़ी हर एक खबर लगातार जारी है। देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइड।